I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Love, forgive, and be forgiven. It will Forgive me, thank you, and I love you. I let go of all the anger, guilt, resentment, and regret that is holding me back from reaching my full potential. Dear self, I am sorry. Please forgive me, thank you, and I love you. I deserve a life filled with happiness and love. Dear self, I am sorry. Please forgive me, thank you, and I love you.
I prioritize and practice self-care on a daily basis. Dear self, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. All of my emotional and mental states are in balance and harmony. Dear self, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I start each day with gratitude that fills me with positive vibes and improves my mood. Dear self, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I fall more in love with who I am each day. Dear self, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I love myself and my flaws while working towards becoming a better person. Dear self, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Hi, good morning, everyone. Good morning, Sonal ji. Morning, Shruti. Good morning, Vandana ji. How are you all doing? अरे आवाज आ रही है मेरी आपको? गुड मॉर्निंग, ओके, फ्रॉम श्रुति. वंदना जी, आप कैसा फील कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत अभी मेरी ठीक नहीं है। वो फीवर के बाद से ना स्टमक में कुछ हुआ हुआ है, तो देखते हैं आज शायद अल्ट्रासाउंड हो। बहुत पेन है काफी स्टमक में ना। राइट. ठीक. एंटीबायोटिक्स तो चल रहे हैं पर राइट. राइट. वंदना जी, आप ना, क्योंकि हम जो हीलिंग मोडालिटी में सीख रहे हैं, आप उसमें होपोनोपोनो फॉर द स्टमक प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप अपने स्टमक के लिए हाँ जी। आई एम सॉरी स्टमक, क्योंकि जो जो भी एक्नॉलेज करो कि मैंने तेरे को इग्नोर किया होगा, मैंने तूने कभी कभी ट्रिगर भी किया होगा, मुझे जताया बताया हम्म भी होगा, पर मैंने ध्यान हम्म नहीं दिया कि चल ठीक है, ठीक हो जाएगा. आई एम हम्म सॉरी स्टमक, प्लीज फॉरगिव मी, कि मुझे मतलब माफी हम्म ठीक करनी है कि इतना तेरे को पेनफुल प्रोसेस से जाना पड़ रहा है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब हो रहा है. देन हम्म थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन. आज तक मैंने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, सब पचाया, घूम फिर रही हूँ. हम्म मेरे बॉडी के सारे प्रोसेस जो है वो तू कर रहा है. मतलब मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो तेरे वहां पे ही है, और जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस थ्रू डाइजेशन हो रहे हैं उन सब हम्म के लिए थैंक यू. फिर मेरे स्टमक पोर्शन में ही, मतलब मैं आई कुड हैव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अ मदर. मतलब वो एरिया के आसपास जितना भी जो फंक्शनिंग है उस सब के लिए यू सीक फॉरगिवनेस एंड यू से थैंक यू एंड देन से आई लव यू. एक राउंड तो ठीक ये है आप अपने स्टमक का जरूर करो. एंड सेकेंड ठीक इज है। ईएफटी. जब आपने फॉरगिवनेस कर ली, होपोनोपोनो, फिर ईएफटी प्रैक्टिस करो. ईएफटी में क्या करना है आपको? जो भी फील हो रहा है, और हम्म पोर्शन आपको पता ही है, जैसे आपको इमोशन हम्म हो सकता है, आप कहते हो हेल्पलेसनेस है, तो आप हम्म प्रैक्टिस करते हो, इवन दो आई हैव अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड आई फील हम्म इट इन माई स्टमक, but I still ठीक है। choose to heal and integrate that part of me. And हम्म I choose to love and accept myself deeply and completely. And I हम्म let go of this pain. ठीक है ठीक फिर वर्बलाइज करते हुए, दिस पेन इन स्टमक, दिस पेन इन स्टमक, दिस पेन, आई लेट गो, आई रिलीज द बर्डन, आई रिलीज, आई लेट इट गो. आई चूज टू हील, आई चूज टू हील, आई चूज टू हील दिस बर्डन करके जो भी चीज आ रही है दिमाग में, वर्बलाइज जरूर करते जाओ. वर्बलाइज है। करके निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ. और उसकी जरूर इंटेंसिटी पहले चेक करोगे कि हाँ, 10 on 10 में कितना है. पहले 10 आ रहा है, फिर रिलीफ देखो. हम्म क्योंकि जो भी आप फील कर रहे हो, वो जो स्केल आएगा हम्म वो बॉडी में हम्म वही इम्पैक्ट आएगा. ठीक स्केलिंग है इज ठीक। नॉट, ये आपके लिए नहीं है. स्केलिंग वो है अगर वो स्केल आपका इमोशनल लेवल पे स्केल कम हुआ है,
तो हम अभी हम्म। पूरे सेशन में सिर्फ यही सीख रहे हैं कि अगर इमोशनल पे जो भी इम्पैक्ट आता है वो फिजिकल पे आता है। तो इमोशन की अगर रेटिंग कम हो रही है तो फिजिकल पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। राइट, सो इट विल हेल्प यू। ठीक। देखो, फिजिकल पे डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेट देम डू, बहुत अच्छा जॉब हम्म। करते हैं वो। हम्म। फिजिकल बॉडी को वो अच्छा टेक केयर करते हैं, उनका प्रोफाइल है, हम्म। दे डू देयर जॉब वेल। हम हम्म। इमोशनल एंड मेंटल बॉडी पे काम कर रहे हैं, हम उधर करेंगे क्योंकि तीनों कनेक्टेड है। ठीक है। ये फास्टन अप, इसीलिए कहते हैं फास्टन अप हो जाते हैं। जब आप इमोशन या मेंटल पे काम करते हो तो हीलिंग फास्टन अप हो जाती है। जो ठीक है। जो चीज आपकी 10 दिन में ठीक होनी है वो 5 दिन 3 दिन लगेंगी, हम्म। है ना, फिर बट। मैं आज क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। अच्छा, ओके। जितना भी होगा बीच में कोशिश हाँ, आज करूंगी। का वैसे हाँ। लेटर राइटिंग पार्ट है, तो आप तो मुझे हाँ। समझ आ रही थी नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने हाँ। वैसे डाल दिया था कि जो बीमार है ठीक है। वो ठीक है। लिखो मत, लेकिन ठीक है। वर्बलाइज, वोकल करो हाँ, उसे। जितना भी होगा मैं कर लूंगी। हाँ, लिख पर सकते हो, पूरा अच्छा नहीं है। है, बट अगर स्ट्रेन आ रहा है आइज में या हाथ में या कुछ कहीं भी दर्द है हम्म। तो जो चीजें जैसे हम बोल रहे हैं ये लोग लिखेंगे, आप लोग उसको ठीक वर्बलाइज है। कर लो। आप ठीक है। बोल लो डियर सेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। जो भी हम बताएंगे। ठीक। ऑल राइट, थैंक यू। वेलकम, प्लीज टेक केयर। Let me share it. Okay, you see the screen, right? So today we're going to start the letter writing process, which is very, very, very important. लेटर राइटिंग हम बचपन से सीखते आए हैं ना, बचपन से सीखते हैं। तो जब हमने किसी को कोई बात कन्वे करनी है तो हमने देखा है कि जो चीज़ हम एक तो वर्बल कन्वे करते हैं, है ना, एक हम मैसेज के थ्रू कन्वे करते हैं। आप लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा कि जब आप मैसेज के थ्रू कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा लिख देते हो, होता है ना, डर, बोलने में डर आता है। लेटर राइटिंग में बहुत इजीली एक्सप्रेस कर देते, किसी से लड़ाई हुई है तो लड़ा तो जाता नहीं जाके वर्बलाइज, फिर लेटर के थ्रू सारे इमोशंस निकालने लग जाते हो। और जब आप लिख देते हो लेटर के थ्रू तो बड़ा लाइट फील करते हो कि हाँ मैंने कह दी बात। राइट। हाँ, राइट। तो आई थिंक ये, हम्म, तो व्हेन यू फील दैट, और ये बचपन से हमने करते आए, और जब भी हमने किसी किसी को लेटर लिखी है आपने नोटिस किया उसका रिवर्ट जरूर आता है, उसका इम्पैक्ट होता है, वो काम आती है चीज, है ना। लेटर राइटिंग लिखा तो अगले तक पहुंची, हमने एप्लीकेशन स्कूल में लिखी तो एप्लीकेशन, सिक लीव फॉर लीव, सिक लीव लिखी तो उसका अप्रूवल आता है, जहां भी जो करते हैं उसका रिवर्ट आता है। तो मतलब लेटर राइटिंग जब हम कर रहे हैं काम आ रही है। लेटर राइटिंग से आपने ये भी बचपन से सीख लिया है कि टेक्स्ट लिखने से बहुत चीजें ज्यादा लाइट अप होने हो जाती हैं, आप रिलीज कर देते हो बॉडी में से। मुझे गर्म बोलने वाली थी, तो वो रिलीज हो जाता है, राइट। जब हम इतना कुछ समझ रहे हैं, दूसरा, आई एम श्योर सुना भी होगा कि जो हमारी टिप्स है, हैंड्स, हमें कहते हैं ना, सिखाया जाता है कि ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे हो लेकिन कोशिश करो कि लिखो चीजें, लिखो। जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तो क्या बोलते थे टीचर्स, बैठ के खाली सुनो नहीं, टेक डाउन द नोट्स, लिखो। वाई? क्योंकि जो लिखा है लिखते हैं वो एक तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करता है, यानी कि वो सीप इन होता है, वो प्रोसेस में ज्यादा जाता है, राइट। वो सरफेस पे नहीं रहता, प्रोसेस में जाता है, तो उसको जो जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसको वो चीजें रास्ते मिलते हैं। उस चीज ने जहां जहां पे जगह बनानी है वहां वहां पे जगह बनती है थ्रू लेटर राइटिंग। एंड साइंटिफिकली जो हमारे टिप्स हैं, दीज आर कनेक्टेड टू आर वेव्स इन द न्यूरोब्रेन्स, यानी कि हम टैपिंग में भी कहते हैं ऐसे करो, है ना, बताते हैं, एक्यूप्रेशर में भी ऐसे ऐसे करते हैं, इसको प्रेस करो, प्रेस करो। सेंसिटाइज जब हम प्राणिक में करते हैं तो फिंगर को सेंसिटाइज हमें ऐसे ही कराते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। ये सेंसिटिविटी यानी क्लेंजिंग होती है। ये हीलिंग में भी वैसे एक अलग प्रैक्टिस भी है सेंसिटाइज करने की, राइट। एंड जब आप ये लिख रहे हो, जब आप प्रेस करके अपने ये हाथ से पेन लिया, आपने लिखा, तो आपकी ये सारी चीजें प्रेस हो रही हैं, तो ऑलरेडी आपको नीरो को पहले ही सिग्नल जा रहे हैं, वॉट एवर यूर राइटिंग थ्रू हैंड्स, है ना। और आपने ये देखा भी होगा, जैसे आपका बच्चा या कोई भी पास में है, एक आप उसको देख रहे हो, एक आप बच्चे का हैंड होल्ड करते हो, फील करते हो, व्हाट्स द डिफरेंस। बच्चा सामने ही बैठा है आपका, आप उसको अच्छे से देख रहे हो, बाकी चारों सेंसेस से देख रहे हो, एक आपने उसको टच किया, कितना फर्क आता है। दैट इज द डिफरेंस व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एंड व्हेन यू राइट समथिंग। फील,
फीलिंग ज्यादा कनेक्ट होती है उसके साथ, जो चीज आप लिखते हो। यू एक्सप्रेस योर फीलिंग वेल व्हेन यू राइट। गॉट इट? सो दिस इज इम्पोर्टेंट। लेटर राइटिंग जरूरी है। वैसे भी हीलिंग इंडस्ट्री में भी लोग सेल्फ को लेटर लिखते हैं, लोग किसी को भी लिखते हैं जिससे वो बात ही नहीं कर पाते, जो दूर है, जिससे गुस्सा है, जिससे वो ईगो क्लैश में है, तो सामने नहीं बात कर पाते, बट दे राइट थ्रू लेटर्स। और मैंने जैसे बोला कि सारी गेम एनर्जी की है, यही हम सीख रहे हैं। तो जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जो इंटेंट आज डाल रहे हो, वो इंटेंट पहुंच रही है, अगले के पास पहुंचती है। राइट? जो भी इंटेंट आप किसी के लिए भी कर रहे हो, जैसे आपने किसी के लिए भी काम किया है, तो आप कहोगे कि वो रिवार्ड मुझे वहां से मिलेगा। किसी के लिए आपने अच्छा किया तो आपका वो थॉट या कर्मा क्रिएट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वो कर्मा उसी के थ्रू आपको फुलफिल हो जाएगा ना, वो कर्मा कहीं से भी मल्टीप्लाई होके फुलफिल होगा, वो अच्छा है या बुरा है। इफ यू हैव गिवन पेन टू समबडी, आप ये रेडी रहो ना, बहुत बारी बता दिया, सेम पेन मल्टीप्लाई होके वापस आनी है। राइट? और अगर आपने किसी के साथ के लिए अच्छा काम किया है, सेम कर्मा मल्टीप्लाई होके गुड फॉर्म्स में, नॉट नेसेसरीली थ्रू दैट पर्सन ओनली, 10 और लोग खड़े होंगे दुनिया में आपके लिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशंस इवेंट्स आपके साथ हैपन होंगे, और वो आपको काम आएगा। दैट्स हाउ कर्मा पेज बैक। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू लेटर राइटिंग 10:45. We'll start with setting an intention, which is grounding. तो सबसे पहले कोई भी काम कर रहे हो तो हम शुरू से ये सिखा रहे हैं कि आप इंटेंशन जरूर सेट करो। सेट योर इंटेंशन, राइट? सो एक तो आपने बॉटल जिसने पास रखनी है, वो मैं पहले ही इंस्ट्रक्शन में से हर बार देते हैं कि पहले ही रखो नोट पैड डायरी, कीप इट हैंडी विद यू, राइट? एंड चूज अ साइलेंट कॉर्नर ऑफ द हाउस और द रूम, राइट? एंड यूज योर हेडफोन्स। अगर लगता है आसपास बच्चे घूम रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या हेल्पर घूम रही है, तो कहीं डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना है, then you can use your earphones or headphones. So we'll start with setting an intention and setting up a grounding. That's it, with your spine straight. Begin with slow breathing. 3 times आपको inhale, exhale, slow breathing normal process में करना है. All right? Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now say it louder. मेरे पीछे पीछे ही आप बोलेंगे. Today, we are not writing this letter to change another person. We are writing it to release what we have been carrying within ourselves. In Hindi, it goes, आज हम ये लेटर किसी और को बदलने के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम ये लेटर लिख रहे हैं ताकि जो भी हमने अंदर कैरी किया है उसे हम रिलीज करें. We let it go from our body. Just say it in your mind 3 times. 3 times. All right.
Now, have your notepads with you and pen or pencil, preferably a pen. Now, gently bring to the mind the person, वो जो भी पर्सन जिसको आपने लेटर लिखना है या जिससे आपने बात करनी है, जिसके बारे में कुछ रिलीज करना है. सो जेंटली ब्रिंग टू द माइंड उसको, अपने दिमाग में चेहरा लेके आए. क्या रिलेशनशिप है उनके साथ आपका? क्या इवेंट है? और क्या आपको रिलीज करना है, कि क्या चीज है, वो कौन सा इमोशन या वूंड है जिसको आप फॉरगिव करना चाह रहे हो? जो लिख पाएंगे वो लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड. सो इट्स अ डीप प्रोसेस, टेक योर टाइम, राइट इट डाउन. आराम से इसको लिखो, क्या हुआ था, एक इवेंट, व्हाट हैपेंड, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. When I say write it down, I literally mean you got to write it down, not just revising in your head. पांच क्वेश्चन है. व्हाट हैपेंड, व्हाट हर्ट मी द मोस्ट, व्हाट डिड आई नीड देम, देन उस टाइम पे क्या चाहिए था, पर मेरे को वो चाहिए था कि जब मैं बात कर रही थी तो मेरी बात सुनी जाती, या मैं ये सोच रही थी कि जब मेरे को मदद की जरूरत थी तो मेरी मदद की जाती, या जब मैं करियर के लिए बात कर रही थी अपने पेरेंट्स को बोल रही थी कि मेरे को ये करियर की चॉइस जाना है, मुझे उस फील्ड में नहीं जाना, तो वो मेरी बात बैठ के सुनते, मुझे समझते, मुझे एड्रेस करते. या मेरी शादी होगी, मैं शादी उस बॉय से नहीं करना चाह रही थी या करना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे को फोर्स किया गया. या आपके करियर के हो गए, रिलेशनशिप के हो गए, फाइनेंशियल मैटर कर सकते हो, कि मैंने अपने फादर से, पेरेंट्स से या हस्बैंड से कहा था कि वहां प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट नहीं करो, पर मेरे को नहीं सुना गया. राइट. या कुछ भी बेबी प्लान करने का हो सकता है, कोई मैटर भी हो सकता है. उस टाइम पे क्या चाहिए था जो नहीं मिला, वो लिखना है. फोर्थ है, व्हाट इमोशंस एम आई स्टिल कैरिंग, और उसकी वजह से मेरे को क्या दुख हो रहा है, क्या इमोशन आ रहा है, मुझे गिल्ट आ रहा है, मुझे रिमोर्स आ रहा है, मुझे फियर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आती है, बहुत एंगर आता है, मुझे वरी होती है, मुझे शेम भी आता है. राइट. क्या आता है, क्या इमोशन है, एंड हाउ हैज होल्डिंग ऑन अफेक्टेड मी, और ये सब ने आपको इम्पैक्ट कैसे किया, या श्रुति? तुषार, ये लेटर हम उस पर्सन को भी लिख सकते हैं जिसको हम ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स एक बार बता चुके हैं, हाँ मतलब हाँ. या दैट्स ओके ना? अगर हम किससे कोई बात डिस्कस कर चुके हैं, हम फिर से या उसको लेटर लिख सकते हैं. एनी एनी, ओके. आपने जिसको भी लिखना है, जिसके साथ आप होपोनोपोनो कर चुके हो, ईएफटी भी कर चुके हो, फिर से कर लो. ओके. अगर आपको लग रहा है वो वूंड है, मुझे और बात करनी है उस इंसान से, मैं वैसे तो नहीं कर सकती पर और करनी है मुझे, एनर्जी वर्ल्ड में करनी है, मेंटल वर्ल्ड में करनी है, इमोशनल वर्ल्ड में करनी है. अलग वर्ल्ड हैं, जैसे फिजिकल वर्ल्ड हमें दिख रहा है, मेंटल और इमोशनल वर्ल्ड्स नहीं दिख रहे. बहुत सीधी सी एग्जांपल है श्रुति, अब आप और मैं बात कर रहे हैं, हम्म. मैं आपके पास नहीं बैठी, आप हम्म. मेरे को पूरा सुन रहे हो, मैं आपको पूरा सुन रही हूँ, आप हम्म. मुझे पूरा देख रहे हो, मैं आपको पूरा देख रही हूँ. हम्म. लेकिन ये लैपटॉप पे समझ आ रहा है आपको, बीच में तारे वर्ल्ड, इस एनर्जी वर्ल्ड, फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड में कहाँ पे कैसे कनेक्शन हो रही पता है आपको? कांट राइट. सी. हाँ. आपके डिस्टेंट रिलेटिव यूएस में बैठे आपसे बात कर रहे, फोटो हो रही, कहाँ से हो रहा है ना. से हम्म. वो चीजें नहीं दिख, वो जो 5D वर्ल्ड हमें नहीं दिखता, नहीं, वो है, एनर्जी हम्म. वर्ल्ड है. मैं आपसे बात कर रही हूँ क्लियरली. ऑल लाइक, और जिनकी जो भी प्रैक्टिस जिसके लिए भी की थी, दे कैन ऑल बी डिफरेंट पीपल, राइट? ऐसा तो नहीं ना कि हमने एक ही चीज किसी पे नहीं. फोकस, ऐसा हाँ. तो नहीं. नहीं ओके. नहीं, आप कर सकते हो उस करेंटली उस मोमेंट पे आपको क्या हील करना है. मैंने कहा ना, एक बच्चे की टांग टूट गई वो पहले देखोगे, या जिसको बुखार है पता है 3 दिन में होगा ही, सेटल हो जाएगा, लंबा प्रोसेस जाना है जिसका, या जिसको टाइफाइड है पता है कि उसको जाना है, उसकी दवाई तो चल ही रही है, एक फटाफट आगे की मेरी हड्डी टूट गई है, तो उसको पहले कर लो, क्योंकि हड्डी टूटी उसको तुरंत एड्रेस देना पड़ेगा. तो बीच में कुछ छोटे छोटे इवेंट पॉपअप हो जाते हैं, तो वो फोकस नहीं बनाने देते मेजर चीजों पे, तो उसको एड्रेस कर लो. ठीक है. तो फिर अभी जो ईएफटी सबसे राउंड फर्स्ट करो, वो चीज, ईएफटी में क्लियर हो जाता है. ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट चीज मेरे माइंड में आई, ये बात सुन के जो आपने कही, मैं फिर उन्हीं को एड्रेस कर रही हूँ, ये. हाँ हाँ, डू दैट एंड राइट इट इन डिटेल.
हाँ, कोई गॉट इट। जल्दी नहीं, कोई रश नहीं है, कोई ये नहीं कि हमें हमारे पास टाइम इतना है। हम सेशन को 11:30 तक जितना रहेगा उतना ही करेंगे, लेकिन डिटेल करेंगे, भागना नहीं है। सो एवरीबडी जस्ट राइट इट डाउन। एड्रेस, राइट ऑल द 5 क्वेश्चंस। जिस इसका होता जाएगा वो डन लिखते, वर्चुअल थम्स अप शो कर दे, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे।
ओके सोनल जी, वंदना जी, हैव यू डन? हाय सुनैना। वंदना जी थम्स अप। अगर आपने नहीं लिखा तो वैसे भी दिमाग में रिकॉल किया अगर ये चीजें, क्या हुआ था, आपको क्या चीज बहुत हर्ट की, आप क्या चाहते थे कि आपको वैसा अटेंशन मिले या आपसे वैसी बात की जानी चाहिए थी, वैसा इमोशन आपको फील कराया जाना चाहिए था, और उस एपिसोड की वजह से आपको अभी भी क्या इमोशंस आप कैरी कर रहे हो, और इसने आपको कैसे इम्पैक्ट किया है। सोनल जी, ओके डन, राइट, ऑल राइट। सो दोज हु हैव रिटन, अगर कुछ और ऐड करना है तो अभी भी ऐड कर लो आप। नो नीड टू शेयर, जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ। ओके, सो दिस वाज इवेंट, हमने पर्टिकुलरली वो इवेंट देखा, वो इमोशन देखा, वो क्या हुआ था, क्या मुझे फील करना था, लेकिन मेरे को क्या फील कराया गया या मैंने क्या फील किया, चाहे वो अगले पर्सन ने कराया, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, नोइंगली, अननोइंगली। कई बार होता है कि अगला पर्सन डेलिब्रेट अटेम्प्ट करता है आपको वो फील कराने में, से पता होता है कि इसको ऐसा फील हो गया बट स्टिल ही और शी डजंट बॉदर। कई बार होता है अननोइंग, उसकी नॉलेज में ही नहीं होता कि इस वजह से इसको ये पेन जा रहा है, या उसको नहीं पता होगा आप इसको कैसे रिसीव कर रहे हो इस इंफॉर्मेशन को, राइट। आप कौन से फिल्टर से, कौन से बिलीफ से देख रहे हो, कौन सी मेमोरी ऑलरेडी सिमिलर इवेंट से रिलेटेड क्या मेमोरी आपने पाल रखी है, और वहीं से आप उसी फ्रेम से देख रहे हो, अगला पर्सन इज नॉट अवेयर। तो दोनों ऑप्शन हो सकती है, लेकिन आपको हर्ट हुआ है, नोइंगली कह लो, अननोइंगली कह लो, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, डेलिब्रेट कह लो, या जैसे भी कह लो, लेकिन आपको हर्ट हुआ है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द लेटर। हमने इवेंट रख लिया, दिस इज अ लेटर टू सेल्फ। पूरा फॉर्मेट आपके सामने है, आपने एज इट इज फॉर्मेट में लेटर को लिखना है, इन योर ओन हैंड राइटिंग, आप खुद लिख रहे हो, राइट। पहले हम इसको लिखेंगे, आई रीड इट फॉर यू, दोज हु कांट रीड हियर, लेकिन समझ आ जाएगी लेटर क्या है। एंड दोज हु आर एबल टू सी, ओके है एकदम, तबीयत ठीक है, वो लिखना शुरू कर दो। सो दोज हु कांट सी, अभी स्क्रीन का उनको प्रॉब्लम है, स्ट्रेन है आईज में, तो मैं उनके लिए पढ़ देती हूँ। डियर सेल्फ, तो डियर सेल्फ में आप नाम लिख लो अपना, जिस जिसका है, श्रुति है, सोनल है, मसूदा, अलका, सुनैना, एनीवन, अपने आप को लिखा। जैसे डियर तुषार, आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज देयर आर थिंग्स, श्रुति ने अगर किसी और को लिखना है, अगर किसी और को लिखना है तो भी लिख सकते हैं, जैसे इनका इवेंट है। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज देयर आर थिंग्स आई हैव कैरिड इनसाइड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर आपने व्हाट हैपेंड, वो जो पीछे हमने इवेंट निकाल दिया था ना, अभी लिखा है पिछली स्लाइड में, व्हाट हैपेंड वाज, वो लिख दो, ये बात हुई थी, वो इवेंट लिख दो। फिर आप उसके बारे में लिखो, उसकी वजह से क्या फील हुआ। जैसे हम अभी बार बार इमोशन की बात कर रहे हैं, तो आपने लिखना है, इट मेड मी फील गिल्टी, इट मेड मी फील इरिटेटेड, इट मेड मी फील फ्रस्ट्रेटेड, इट मेड मी फील एंग्री, इट मेड मी फील छोटा, स्मॉल, इट मेड मी लूज माई रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, इट मेड मी फील ashamed, कोई भी फीलिंग हो सकता है, राइट। इट मेड मी फील हेल्पलेस, जो भी फीलिंग आ रहा है, क्या हुआ था। वर्ड हर्ट मी द मोस्ट वाज, सबसे बुरी बात मुझे इस इवेंट में ये लगी, जो भी हो सकता है, यू वर नॉट काइंड, यू डिडंट लिसन टू मी, यू कंप्लीटली इग्नोर्ड मी, you killed my self respect, you embarrassed me in front of others, you totally treated me as a small insect, right. I was just being ignored on plain grounds, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी फीलिंग आ रहा है। वॉट आई विश यू हैड अंडरस्टूड मी, जो हमने पीछे स्लाइड में किया, क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए था। वॉट आई विश यू हैड अंडरस्टूड वॉज, मैं चाहती थी कि तुम समझते कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मैं चाहती थी कि तुम मेरे को सुनते। पेरेंट्स को हो सकता है, सिबलिंग को हो सकता है, रिलेशनशिप्स को हो सकता है, बॉस को लेटर हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, राइट, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी हो सकती है कि आप ही सुन लेते ग्रैंड पेरेंट्स, कोई इवेंट है जिसका जो भी इवेंट है, कि मुझे सुनते, आई शुड हैव बीन हर्ड, एटलीस्ट सुना जाता मुझे, माई फीलिंग्स वर टेकन केयर ऑफ उस टाइम पे,
right? That inner self of mine was completely ignored. That child, that inner version was ignored. मुझे बुरा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था आई डोंट एग्जिस्ट फॉर एनीवन, कुछ भी, ठीक है। लेकिन मैं चाहती तो ये सब चीजें, यानी कि मुझे ये चीज फील हो रहा था, बट मैं आई वाज आई वांटेड टू बी ट्रीटेड विद काइंडनेस, विद लव, विद कंपैशन. I wanted you to have understood me. I wanted you at least to pay heed to me, what I was saying. I wanted to be heard. I wanted to feel important at that time. I wanted to be treated like a princess or a queen, जो भी. Then I acknowledged that my pain was real. और मैं मानती हूँ कि वो पेन बहुत रियल थी, वो बहुत पेनफुल भी थी. एंड आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील इट. और अगर ये मेरे को उभर के और तेज आ रही है, तो आई एक्नॉलेज इट, मैं इसको और फील कर रही हूँ. क्योंकि जो चीज फील करोगे वही हील करोगे. एनीथिंग विच यू आर नॉट एबल टू फील यू कांट हील. इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू फील. आने दो उसको. कहीं कहते हैं कि यार ज्यादा आ रहा है, वो इवेंट बार बार याद कर रहे हैं और उभर के सामने आ रहा है. आने दो. जितना पेनफुल होगा उतनी अच्छी दवाई खाओगे आप. जितना दर्द को देखोगे कि हाँ दर्द आ रहा है, उसको अगर खाली इग्नोर करी जाओगे तो वो ना टेम्परेरी लेवल पे तो इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो अंदर जाके वुंड बनता रहेगा, वो सीरियस ट्रॉमा बन जाएगा. तो उसको बाहर आने दो. सो गिव इट परमिशन टू गिव योरसेल्फ परमिशन टू फील इट. देन आई एम चूजिंग टू रिलीज द एंगर. अब हमने ये इमोशन लिखे हैं, एंगर, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट. आप कुछ भी जो आपके इमोशन है लिखो. बहुत अच्छे से लिखो, जितने भी आ रहे हो. जरूरी नहीं है एक ही है, कितने आ रहे होंगे उस इवेंट को लेके. जैसे मैंने जो लिखा, तो मेरा उसमें एंगर है, हेल्पलेसनेस है, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भी है. चारों लिखो. तो शायद उसमें तो फिर सिमिलर इंसिडेंट्स और भी आ सकते हैं यार, वो भी लिखने हैं. अभी हम एक को ही टेकअप कर रहे हैं ना. अब ये जो लेटर लिखी है, हर अच्छा. इवेंट के लिए एक अलग लेटर लिख दो. अच्छा. अलग लेटर. I'm choosing to release the anger, hurt, disappointment and expectations I have been carrying. थी ना expectation के. मेरे पेरेंट्स सुनते तो सही, मेरे से पूछते तो सही मेरे को क्या जॉब करनी है. पूछते तो सही मैं अभी शादी करना चाह रही हूँ कि नहीं. मेरा हस्बैंड तो पूछता कि मेरे को हाउस वाइफ बनना है या वर्किंग वुमेन बनना है. मेरे बच्चे तो पूछते. मेरे में बीमार थी वो इग्नोर करके चले गए. मेरे इन लॉज ने नहीं दिया. कुछ भी हो सकता है, एनी प्रॉब्लम. चाइल्डहुड हो सकती है, एडल्ट एज की, टीनेज की हो सकती है, कोई भी जो भी आपने टेकअप की है. देन आई फॉरगिव यू. यू के बाद जिस पर्सन को लिखा है उसका नाम लिख दो. आई फॉरगिव यू सेल्फ के लिए है, तो आई फॉरगिव यू करके अपना नाम ही डालो. या आई फॉरगिव माई सेल्फ भी कर सकते हो. फॉर किस चीज के लिए, कि वो पेन दी थी. आई फॉरगिव यू फॉर दैट पेन दैट यू हैव गिवन मी. आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द पेन आई हैव बीन कैरिंग. ना इसमें दोनों ऑप्शन उसने दिए हैं. आई फॉरगिव यू भी और सेल्फ भी, दोनों राइट अप करने तो दोनों ही कर लो. कि जैसे आपने किसी और को लिखा था, तो आपने उसको कहा कि आई फॉरगिव यू सो एंड सो, जिसका भी नाम दिया. जैसे कि लेट्स से इफ आई एम राइटिंग अ लेटर टू सुनैना, सो आई फॉरगिव यू सुनैना फॉर गिविंग मी द पेन. फिर अपने आप को भी सेल्फ में साथ में किया है. आई ऑल्सो फॉरगिव माई सेल्फ फॉर कैरिंग द पेन, फॉर कैरिंग द फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम, हेल्पलेसनेस, रिमोर्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी. एंड आई रिलीज द नीड फॉर यू टू चेंज. और मैं सोचू कि हाँ भी बदलाव तुम बदलो. मेरे को क्या बोल, दिमाग में ये आ ही नहीं रहा कि तुमने बदलना है. मेरे को कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं कि तुम बदलते, या अब तुम बदलो, या अंडरस्टैंड करो, या माफी मांगो, और या क्लोजर दो. मेरे को ये तुम मतलब मैं यानी कि सारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स आपने बंद कर दी. क्योंकि यू आर टेकिंग द चार्ज. अगला क्योंकि करे ना करे हमें नहीं पता. अगला हमारे लिए स्टेप लेगा कि नहीं लेगा हमें नहीं पता. यू टेक द चार्ज. आपने ये मन में जो इच्छा है ना कि वो मेरे पास आके माफी मांगे, वो कुछ कहे, वो बात इनिशिएट करे, अगर आप वो करोगे तो वो नहीं आएगा. नोबडी वांट्स टू लाइक गिव यू ईज. या मसूदा. हाय तुषार, ये Hi. जो लाइन है ना, व्हाट आई विश यू हैड अंडरस्टूड वाज, इफ यू हम्म. कुड जस्ट एक बार रिपीट कर देंगे, इसमें कैसे अपने आप को क्या बताना है. विच लाइन. आफ्टर व्हाट हर्ट मी द मोस्ट वाज व्हाट आई विश यू हैड अंडरस्टैंड वाज, मतलब हाँ. अपने आप को बताना है ना कि हम उसको थोड़ा पिछला एक्सपैंड पिछला करते स्लाइड हैं. का, यू मीन दिस स्लाइड.
दिस स्लाइड और द सेम? नहीं नहीं नहीं, वही लेटर वाली हाँ। स्लाइड में ही। uh, 1 2 3 4, द फिफ्थ वन। I acknowledge that I give myself permission to heal. उससे अच्छा, ऊपर what I wish वाला। you had understood. हाँ, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि जो पर्सन है, लेट्स से जो पर्सन है, आप चाहते कि वो मेरी बात सुनता, तो आई what I ओके। wish you had understood my feeling at the time. You had understood me. You had given me importance. I was I not was being not. heard. या और तो यू ओवर हियर इज मी माई सेल्फ और द अदर पर्सन? वो मैंने ऊपर शुरू में कहा ना, आपने किसको लिखा है? वो तो सेल्फ को ही लिखा है। आपने सेल्फ को लिखा है। तो व्हाट आई विश यू हैड दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, उस वर्जन ओके। ने अलाउ किया ना फिर। उस राइट एज राइट वाली जो राइट मसूदा थी, उस एज वाली मसूदा को स्टेप लेना चाहिए था। राइट राइट। व्हाट आई विश थैंक आई हैड बीन मोर पावरफुल, मोर एम्पावर्ड। आई विश आई हैड टेकन स्टैंड फॉर माई सेल्फ। वो नहीं किया। आई विश आई हैड सेड नो बोल्डली एंड क्लियरली टू द अदर पर्सन। वो मैंने नहीं किया। आई विश आई हैड बीन मोर करेजियस एंड स्ट्रांग। वो नहीं थी। वो लिखो। गॉट इट? थैंक्स फॉर। वेलकम। ऑल राइट, सो आई रिलीज द नीड फॉर यू टू चेंज। आपने दूसरे को कहना ही नहीं है, दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मेरी कोई ये इच्छा है कि तुम बदलो, तुम सुनो, तुमने ये किया, अब तुम सोचो माफी मांगो ताकि मैं हल्की हो जाऊं। क्यों भाई? दूसरे के माफी मांगने से हल्के नहीं होना है। खुद को चार्ज लेना है, खुद ही हल्के होना है। खुद ही लिख के करो, खुद ही वेंट आउट करो, खुद ही रिलीज कर दो। ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, आपने अंदर कैरी करना है कि नहीं। अगला घर में कूड़ा फेंक रहा है, पड़ोसी अगर जब आपके घर के आगे कूड़ा फेंकते हैं तो आप क्या करते हो? आप उससे बात करते हो, और यू हैव द चार्ट, और यू कीप इट। रखे रखना है। व्हाट डू यू डू? रखे रखते हो? नहीं रखे रखते। यू मतलब आप उसको वेंट आउट, ये फिजिकल वर्ल्ड में आप वेंट आउट करते हो, आप रिलीज करोगे, यू टॉक टू द अदर पर्सन। तो हमने यहाँ पे टॉक दूसरे से जाके नहीं कि हमने लेटर के थ्रू कर लिया है। बट कूड़ा थोड़ी ना रखना है, कूड़ा तो निकाल दो। तो या आप अपनी हेल्पर से निकलवाओगे या बोलोगे जी आप निकाल लो। फिजिकल वर्ल्ड में आप, फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारे पास, हम पड़ोसी से बोलते हैं कि आपका कूड़ा आप निकालो। बट यू चोज ना कि मुझे नहीं, चूज तो आपने किया मुझे नहीं रखना कूड़ा, तो टेक दैट चार्ज, मुझे नहीं रखना कूड़ा। आई वॉन्ट टू गिव इट अवे। अब दूसरा पर्सन कहता है, पड़ोसी कहता है जी मैंने तो नहीं उठाना, ये पड़ा ही रहेगा। तो आप रखी रखोगे या अपनी हेल्पर बोलोगे चल यार थोड़ा सा पीछे कर, गंदगी तो अपने घर ही आ रही है, बदबू अपने घर ही आ रही है, लक्ष्मी तो अपनी रुक रही है। यू डू दैट। So I release the need for you to change, understand, apologize, or give me closure. Then I choose to take back my emotional energy and move forward with greater peace. चार्ज ले लिया, दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म की है, और मैंने खुद चार्ज लिया है। सो आई चूज टू टेक बैक माई इमोशनल एनर्जी। जो मैंने दे रखी थी गिरवी, याद है सुनैना ने कहा था, जब आप कोई इमोशन अंदर कैरी करते हो तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो दे देते हो किसी को, आप उसको गिरवी रख देते हो। आपने अपनी थिंकिंग, मेंटल एंड इमोशनल बॉडी उसको दे दी, गिरवी रख दी, यानी जो 100% आप यूज कर सकते थे, 30% आपने अपने पास रखी, 70 तो दे दी। और लोग 10 ही रखते, 90 दे देते। सोची जाएंगे, ओवर थिंक करी जाएंगे, ड्वेल करी जाएंगे, करी जाएंगे, करी जाएंगे। सॉल्यूशन के लिए नहीं कर रहे, विक्टिम बनने के लिए कर रहे होते, पेन के लिए कर रहे होते, बिकॉज दे एंजॉय द पेन ऑफ बीइंग इन द विक्टिमहुड। राइट, उनको वहां से फिर मजे आने लग जाते हैं कि मैं विक्टिम हूँ, थोड़ी सी अटेंशन मिल रही है, या वो आ रहा है, या चांसेस बन जाते हैं कि सॉरी बोलने के अगला आएगा। राइट, सो आई चूज टू टेक बैक माई इमोशन। मेरे को दे दो वापस, मेरे पास दिमाग नहीं है कि तुम्हारे पेन संभाल के मैं बैठी रहूं। मुझे ये रिलीज कर देना। आई फॉरगिव यू। राइट, एंड फॉरगिव इट विद लव, लव एंड कंपैशन। उसको किसी अकड़ में, किसी एटीट्यूड में, ईगो में नहीं हमने करना है। जस्ट उसको रिलीज इट। क्योंकि अगर आप ईगो में वेंट आउट करने की कोशिश करें तो ईगो को ही बर्थ देगी। तो लव एंड कंपैशन से इसको रिलीज करोगे आप। सो आई चूज टू टेक बैक माई इमोशनल एनर्जी एंड मूव फॉरवर्ड विद ग्रेटर पीस। आई मे नॉट फॉरगेट व्हाट हैपन, क्योंकि हम कहते हैं जब भी हम ये करें कि कई बार होता है कि इंसिडेंट जो है, मैं रेनू मैम से भी अभी कुछ टाइम पहले जब ये फॉरगिवनेस शुरू करने वाली थी तो मैंने कहा था मैम वो सबका भी उनको इवेंट फॉरगेट कराना है। तो मैम कहते हैं इवेंट नहीं फॉरगेट होगा, इवेंट से जुड़े जो पेन है वो निकालने हैं। सो आई मे नॉट फॉरगेट व्हाट हैपन, बट आई नो लॉन्गर वांटेड टू कंट्रोल माय प्रेजेंट। उस इवेंट की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस या इमोशन आया था,
वो इमोशन जो अभी तक मैं कैरी कर रही थी मन में, और उस इमोशन की वजह से अगले फ्यूचर को भी देख रही हूँ और प्रेजेंट को भी देख रही हूँ और डेस्टिनी क्रिएट कर रही हूँ, वो खत्म करना है। उस इमोशन से, इवेंट से जुड़ा इमोशनल पेन खत्म करना है, और उसका इम्प्रेशन अब प्रेजेंट में और आगे नहीं लेके जाना है, राइट? एंड आई विश यू हीलिंग, एंड आई चूज हीलिंग फॉर माई सेल्फ। और अगले को भी, क्योंकि हमने ऊपर जब लिखा तो 2 लाइनें आई थी, फॉरगिव यू एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ ऑल्सो, तो उसको भी हीलिंग दो। मैंने कहा लेटर में जो भी जितना इमोशन है, लव एंड कंपैशन से ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, लव एंड कंपैशन से ही रिलीज करोगे। सो आई विश यू हीलिंग एंड आई चूज हीलिंग फॉर माई सेल्फ विद फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। सो ये हमने लिखनी है, अभी हम लिखेंगे। सो बिफोर यू स्टार्ट, सुनैना वुड लाइक टू ऐड ऑन टू समथिंग। और हमारे पास 11-16 हो गए हैं, उससे पहले पहले हम इसको लिखने का प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट सुनैना? सुनैना, गो Yeah, अहेड, अनम्यूट। yeah. Hi, good morning, everyone. Good morning, good morning. Just wanted to add on to this, like, कई बार क्या होता है कि जब हम forgiveness की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो we don't feel like forgiving actually. हमारा हर्ट इतना ज्यादा डीप होता है कि हमें अपने लिए कंपैशन ज्यादा आ रहा होता है, बेचारापन ज्यादा लग रहा होता है, लेकिन सामने बट इन एक्चुअल इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर चाइल्ड, कि इनर चाइल्ड जो है वो एक ट्रोमैटिक चाइल्ड है। जैसे आपकी इनर चाइल्ड क्रिएट हुआ है, वैसा सामने वाला पर्सन का भी कहीं ना कहीं वो उसने एडल्ट बिहेवियर के रहते वो उसको नहीं बिहेव किया। जब आप इसको ऐसा समझते हैं तो आपको फॉरगिव करना आसान हो जाता है और सामने वाले को एक्सेप्ट करना भी आसान हो जाता है। जिसमें सबसे बड़ा फीलिंग ये होता है कि अगर वो एक्चुअल में एडल्ट एडल्ट नॉट बाय एज, एडल्ट बाय बिहेवियर, एडल्ट बाय इमोशन। तो हम बहुत लोगों को देखते हैं जिनकी 90-90 साल एज हो जाती है और तब भी वो बच्चे बने रहते हैं, बिकॉज वो अपनी एडल्ट सेल्फ से ऑपरेट ही नहीं हो रहे होते। वो ऑपरेट ही अपने इनर चाइल्ड से हो रहे होते हैं, चाइल्ड सेल्फ से हो रहे होते हैं। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन एक्चुअली एक्सेप्टिंग योर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स। सामने वाले को भी जितना इंटेंसिटी के साथ आप फील कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे उस समय पर क्या होंगी ये समझना आसान हो जाता है आज के अडल्ट सेल्फ के लिए। अगर आपका इनर चाइल्ड आपने हील कर लिया है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी वहां पर पड़ी हुई थी वो वहां से जो है वो रिलीज हो जाएगी, एंड रिलीज होने के बाद आपके पास और स्पेस बन जाएगा कुछ नया और अच्छा और हैपनिंग क्रिएट करने के लिए। बिकॉज हमें कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वह एनर्जी अगर हमारी स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड कहाँ है, वो इवेंट्स और इंसिडेंट्स में ही फंसी हुई है, और जिसकी वजह से जो इनर चाइल्ड है वो चार्ज नहीं ले पा रहा है। आज का अडल्ट सेल्फ भी वो चार्ज नहीं ले पा रहा है क्योंकि इनर चाइल्ड इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है और आपने कभी उसको एड्रेस ही नहीं किया। ऐसे ही सामने वाले ने भी अपना कभी एड्रेस नहीं किया, उसने आपके ऊपर पॉन्डर कर दिया और आपने अपने घर में रख लिया। जैसे अभी तुषार ने बताया कि आपने वो कूड़ा डालता गया, आपने अपने अंदर रख लिया, लेकिन कूड़ा उसने इंटेंशनली डाला या अनइंटेंशनली डाला ये आप खुद जज कर सकते हैं जब आप एक्चुअल में अपने इनर चाइल्ड को हील करके और एडल्ट सेल्फ से उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि व्हाई दैट पर्सन वाज डूइंग। यू विल गेट टू नो द व्हाई ऑफ अदर पर्सन्स बिहेवियर, आपको पता लगने लग जाएगा। ये नहीं है कि आपको ढूंढना ही है, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो वो अपने इनर चाइल्ड पे काम करके तभी सामने वाले से आप उसको एनालाइज बेटर कर पाएंगे। और आप एक्चुअल में अगर मतलब माफ करना तो मतलब बहुत छोटी बात हो जाती है, तब माफ भी कर पाएंगे, उसके बाद एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, उसके बाद एक कंपैशनेट रिलेशनशिप भी डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि आप वहाँ देखेंगे कि अगर वहाँ कंपैशन नहीं था तो कंपैशन की जगह किसी और इमोशन ने ली हुई थी, सामने वाले के अंदर भी और हमारे खुद के अंदर भी। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ, दैट एक्सेप्ट योर सेल्फ विद कंपैशन। एंड जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो सामने वाले के लिए एक्सेप्टेंस करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू, या थैंक थैंक यू यू। सुनैना, थैंक यू। या मसूदा? यहाँ पे मुझे कुछ एक इवेंट याद आ रहा है तो मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ। So, कैन आई डू दैट और सम अदर मसूदा, टाइम? आफ्टर राइटिंग द लेटर प्लीज, ओके। लेटर पहले कंप्लीट कर लो, लिख लो, एंड देन वी वुड बी एबल टू, आई मीन उसके बाद हम जो भी Q&A है या जो शेयर करना है देन वील टेक अप। अनदर इज बहुत ब्यूटीफुल जो सुनैना ने ऐड किया कि जब भी हम आप ये नोटिस करना कि जब भी आप किसी चीज के सॉल्यूशन सीख करने में मोड में आ जाते हो ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आप एडल्ट सेल्फ में होते हो। और जब आप अड़े होते हो, जिद्दी बने होते हो, आपका चाइल्ड सेल्फ होता है। तो कई बार होता है, आप देखना, कई बार तो आप बच्चों के साथ भी एडल्टहुड में एडल्ट बन के ही बात करते हो जनरली, कई बार आप अड़े जाते हो, वो आपका चाइल्ड होता है। ऐसे आप हस्बैंड के साथ होते हो,
तो जब भी जो एडल्ट सेल्फ हमेशा सॉल्यूशन सीकर है, वो सॉल्यूशन सीख कर रहा होता है। जो बच्चे के स्वभाव होता है वो होता है चाइल्ड। तो ये आपको खुद समझ भी आएगा। तो जब हमने कहा कि हाँ हमने फॉरगिव करना है, तो बच्चा बन के आप फॉरगिव नहीं करोगे, बच्चा अड़ जाता है जिद पहले, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो आपको एडल्ट सेल्फ में जाना है, क्योंकि एडल्ट इज ऑलवेज सॉल्यूशन सीकर। तो आप एडल्ट बन के जब आओगे, समझोगे, प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, फिर आप उसको फॉरगिव भी कर पाओगे। एंड फॉरगिव इट विद लव एंड कंपैशन एंड स्टार्ट राइटिंग। पूरा लेटर लिखो एंड देन raise your thumbs up or write done, and then we will take up Q&A and anything that you want to share. Thank you. तुषार, मैं लेटर इज डन, मैं All लिख right. लिया जो साथ में आपने भेजा था, वो मैंने सारा लिख लिया। Good. एंड आई वांट टू शेयर दिस। वैसे मैं काफी टाइम से आई बीन डूइंग कि मुझे रियलाइज होता है कि जब मैं किसी से हर्ट होती हूँ, भले वो घर पे राजेश हो, नव्या हो, एनीवन, इवन विद किड्स एंड राजेश, अगर मैं बहुत किसी चीज से हर्ट होंगी, गलती देखो गुस्से में मेरी है, उसकी इज नॉट मीनवाइल द बाकी लोग लेटर पॉइंट। लिख सकते हैं। श्रुति शेयरिंग बिकॉज शी हैज रिटन द लेटर। आप बाकी लोग कैरी ऑन करो लेटर लिखना। तो पहले क्या होता था, वो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स का तो फर्क मुझे बहुत टाइम पहले पता चल चुका था कि व्हेन यू आर एंग्री यू यूजुअली रिएक्ट रादर देन रिस्पॉन्डिंग, तो करेक्ट वो तो मैंने बहुत अपने आप को उस पे आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड धीरे 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 आई स्टॉप रिएक्टिंग। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग दैट आई डिड, वो मैंने अभी जब मेरी लास्ट थेरेपी मैंने ली है अभी, आई थिंक लास्ट ईयर में, मतलब 25-26, अभी इस साल के बीच में, तो माई थेरेपिस्ट टोल्ड मी वन थिंग दैट what I was doing is कि I was just keeping my emotions to myself. मैं उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर रही थी किसी भी फॉर्म में। मतलब वो ओवर थिंकिंग था। अगर मैं किसी से किसी बात पे हर्ट हुई तो आई वॉज जस्ट कीपिंग इट इनसाइड मी। वो डस्टबिन मैंने अपने आप को ही बना लिया था, वो गार्बेज इकट्ठा कर करके। मिस्टेक मेरी है, किसी और की है, वॉज नॉट द पॉइंट। It was just inside me. So she suggested that you should start communicating. For example, if I'm talking about Rajesh, तो she said कि आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है तो why are you keeping it inside you? करेक्ट। आप उनको बोलो ना। So I told her my problem is, and I think it is with most of the people, कि हम जब बोलना शुरू करते हैं हम पहले रो पड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस इतने हैवी होते हैं उस टाइम पे कि हम बोल ही नहीं पाते। वो पहले रोएंगे तो फिर वो रोते जब है ना, तो उसका आई थिंक not all men understand that language of। हाँ, ये सारे नहीं, आपने कहा ना मोस्ट ऑफ देम ही वो है जिन्होंने बहुत सप्रेस किया हुआ है। हाँ, ये वो लोग हैं जो रो पड़ते हैं क्योंकि वो इमोशंस अंदर बहुत रख अंदर बैठे रखते हैं। अब वो बहुत कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते हम, उस वजह से वो हम रो फिर ही है पड़ते कि हैं। when you don't talk with your tongue your eyes talk। आपका कोई और बॉडी ऑर्गन बात करता है फिर, तो आपका हाँ, जब और जब रोना आ रहा मैं है। रोती थी ना तो राजेश और इरिटेट होते थे। उनको शायद समझ ही नहीं आता था कि यार इतनी छोटी सी बात पे क्यों रो रही है, बट वो पाइल हो चुका था अंदर, वो किसी को दिख नहीं रहा था कि वो इकट्ठा होता जा रहा है। सो देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज आई स्टार्टेड सेंडिंग हिम मैसेजेस। और वो मैसेजेस, क्योंकि बोलना तो समझ नहीं आ रहा ना कि तुम कैसे बात करोगे, बट मैंने रियलाइज किया अपने अंदर ये चेंज कि वो मैसेजेस से मैं कब वर्बल कम्युनिकेशन पे आ गई, मुझे भी वो शिफ्ट पता नहीं चला बिल्कुल भी। बिकॉज देन आई स्टार्टेड नॉट कंट्रोलिंग बट हाँ टेकिंग चार्ज। कल मैंने ये बात सुनी थी, यू शुड नॉट यूज द वर्ड कंट्रोलिंग, यू शुड से टेक इट चार्ज। तो मैंने आई टुक चार्ज ऑफ माई सेल्फ एंड माई वर्ड्स। मैं बहुत केयरफुल हो गई कि यार ऐसी भी कोई बात ना बोलूं कि वो हर्ट हो जाए, और मैं अपनी पॉइंट भी रखूं कि भाई मुझे ये बात नहीं सही लग रही है आपकी, या मुझे ये पॉइंट नहीं लग रहा। पर काफी लोग इस बात को मैनिपुलेशन कहते हैं कि आप मैनिपुलेट करो, पर मुझे लगता है मैनिपुलेट नहीं है, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ ना सामने, और उससे किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, ना मेरा, ना उसका, ना किसी और मैनिपुलेशन का। इज व्हेन यू ट्विस्ट, आप स्टोरी चेंज ही कर देते हो। हाँ, आप स्टोरी बीइंग काइंड और बीइंग केयरफुल विथ माय वर्ड्स कैन नॉट बी मैनिपुलेशन, राइट? करेक्ट। नहीं, आप अगर आपकी इंटेंशन ये है कि इसको वर्ड्स को तोड़ दूं और हाँ, इसका मीनिंग ही, उसका चेंज जो कर दो। राइट पर्पस है वो चेंज ही कर दूं, हाँ, स्टोरी ही उल्टी कर दूं, फ्लिप कर दूं, वो है हाँ, मैनिपुलेशन। अगर स्टोरी फ्लिप नहीं की, हाँ, वर्ड्स को मैनेज किया, ये तो पावर है, वर्ड पावर। वर्ड्स को मैनेज करना तो ये पावर है, इसको हाँ, मैनिपुलेशन नहीं कह सकते आप। ठीक है। हाँ, तो मुझे अगर एक तो आपने ये स्टोरी पॉइंट क्लियर फ्लिप नहीं करना की था। ना, स्टोरी हाँ, फ्लिप नहीं की, आपने अगले को विक्टिम नहीं बना दिया, सॉरी हाँ, अगले को एक्यूज कर दिया या हाँ, अपने आप को विक्टिम कर दिया, जबकि स्टोरी उल्टी थी, फ्लिप किया तो फिर ये गलत है, ये मैनिपुलेशन है। बट यूजिंग द राइट वर्ड फॉर द राइट सिचुएशन टू द राइट पर्सन इज गुड, दैट्स अ वर्ड पार, दैट्स नॉट मैनिपुलेशन। and also that one thing I do which I don't know is right or wrong, and I want to ask you and Sunaina कि is this right what I'm doing? I write emails to myself, मतलब there is an
अकाउंट जहाँ मैं ईमेल लिखती हूँ, जब मुझे कोई बात बहुत हर्ट करती है जो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती इन फॉर्म ऑफ राइटिंग भी, क्योंकि मुझे पता है उसका कुछ बहुत एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, वो बी इट विद फैमिली फ्रेंड्स और एनीवन, ठीक है। बट आई हैव ऐसा डिसाइडेड दैट मैं वो ईमेल एंड वो पासवर्ड या जैसे भी वो आई विल गिव इट टू समवन व्हेन समथिंग हैपेंस टू मी, व्हिच इज वेरी स्टूपिड एंड बहुत दूर का थॉट है, बट वैसा होना चाहिए कि बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक दिस विद मी टू माय ग्रेव। बहुत सिंपल सी बात है, आई वांट टू एक लीव मिनट, इट। एक मिनट, what are you writing in the mails? अगर मुझे कुछ बात हर्ट करी या कुछ ऐसा एपिसोड हुआ है हाँ ठीक मेरे है। साथ या किसी के साथ में, या मुझे कोई चीज क्लियर जो मैं कर नहीं पा रही, जिसका मुझे पता है क्लियर करके बहुत एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, तो मैं ना क्लियर करूं You want अभी। to take it to grave? नो आई डोंट वांट टू। Delete those mails. हाँ, दैट व्हाट आई एम आस्किंग। डिलीट, रखना नहीं है कंटेंट। जो भी आपके कंटेंट मोबाइल में भी है ना टॉक्सिक, हाँ। वो सारी एनर्जी टॉक्सिक आप पास ही कैरी कर रहे हो। ओके, ठीक है। रिलीज इट, तभी कहते हैं बर्न आउट करो, फ्लश दिखना ही नहीं चाहिए उसको। आपने तो स्टोर किया हुआ है, हम्म। तो कैरी किया, कैरी करके साथ रखते हो मोबाइल में, आप तो हर जगह साथ लेके जा रहे हो। डिलीट फॉरएवर में डालो उसको। वो ठीक। तो ग्रेव में आप साथ लेके जाओगे अगर रखा हुआ है। एनीथिंग जो भी पास पड़ा है, जो किसी भी फॉर्म में रखा है, क्यों रखना है ना। आप रिलीज कर, आपने रिलीज कर दिया, आपने किया रिलीज, लेटर इकट्ठा लेटर लिखा और हम्म। उसको पर्ची बनाई और बॉक्स में डाल दिए। क्या कर रहे हो आप? यू कीपिंग सेविंग द एनर्जी, तो सेव ही करके रखी हुई है। फाड़ो उसको, दिखना चाहिए, मतलब आपकी सेंसेस को, आपकी आंखों को, कानों को फील होना चाहिए, दिखना चाहिए सामने, वो चीज खत्म होती दिखनी चाहिए। वो बट अगर हम चाहते हैं कि वो मैसेज अगले बंदे तक पहुंचे, पर अभी हम्म, नहीं, जब मैं ना रहूं तो क्या फिर? तो फिर पेन पेन कैरी कर, इफ यू आर रेडी टू कैरी द पेन, आप पेन कैरी करते रहो, फिर तो वो भी हीलिंग नहीं हुई ना। फिर अगर पहुंचाना है तो मतलब बात कर लो। हाँ। लेकिन विल दैट हेल्प वंस यू गॉन? आप चाह रहे हो कि वो पढ़ ले, आप तो हम्म। चले गए, जो इम्पैक्ट आप चाह रहे थे अब पढ़े, वो तो नहीं पढ़ने वाला, बिकॉज यू आर गॉन। वो रिपेंट रिमोर्स में आ जाएगा, वो शायद आप बदला ले रहे हो, रिवेंजफुल। नहीं, इट्स नॉट रिवेंज, इट इज, आई थिंक यूर राइट कि वो मैं नेगेटिव एनर्जी तो कैरी कर रही हूँ अपने कैरी साथ में, कर रहे हो, बिकॉज तो वो, हर हाँ। जगह लेके जा रहे हो आपको, तो मतलब वो आप, मतलब वो चश्मा आप पहन के घूम रहे हो हर जगह, आपको इनविजिबल चश्मा है जो आप पहन के घूम रहे हो हर जगह। हम्म। यू कैरिंग दिस विद यू, डिलीट, राइट करके डिलीट, वेंट आउट करना है, रिलीज करना है, आपको रखना हम्म। नहीं। ठीक राइट? है। क्या सुना है ना, प्लीज ऐड अप, एंड दोज हु आर राइटिंग प्लीज कंटिन्यू टू राइट। जिन्होंने लिख लिया है वो डन कर दें। सोचने वाली बात यह है श्रुति कि अगर आप उसको स्टोर कर भी रहे हो, मतलब आपके हम्म। सबकॉन्शियस में ऐसा क्या है दैट not letting you leave the things completely, one thing. Second thing is कि uh, आपके सबकॉन्शियस की एक लेयर में अभी भी आप उस चीज को लेट गो करना नहीं चाह रहे हो, दैट इज वाई यू हैव, आपने बोल ही दिया खैर, और इट इज एक्चुअली गिविंग यू समथिंग, इट इज एक्चुअली एडिंग ऑन टू यू समथिंग, किसी किसी ना किसी चीज में वो एड ऑन कर रहा है वो पेन आपको, या वो पेन अभी भी सर्व कर रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पेन कैरी करने से मुझे सिंपैथी मिल सकती है, अपने आप की, किसी और की नहीं सही तो अपने दैट शी आप इज की मिले। सेइंग ना, शी इज हैविंग अ होप दैट समडे ही और शी विल हाँ। रीड इट, वो हाँ, होप लेके समडे मैं वो अपनी बात पहुंचा दूंगी वहां तक, मेरा ये होप है कि होप कैरी जिस, कर रही है वो। हाँ। हाँ। एंड दैट इज सर्विंग यू इन एनी वे? uh, no, it is That not is serving you serving in helping, me. No, no, it's not serving me in any way, but uh, I don't know serving how to you Hopeful for explain. some मैं बताती uncertain, hopeful for uncertain time when she will pass हाँ, हाँ। ग्रेव में होगी, फिर ऊपर से ये एस्ट्रल वर्ल्ड से हूँ, देखेगी। या फिर मुझे लग रहा है कि सेल्फ वर्क के लिए मोटिवेट भी तो हो रहे हैं, वो पेन रखा हुआ है पकड़ के, तो सेल्फ वर्क भी तो कर पा रहे हैं अपने ऊपर, अगर वो पकड़ के नहीं रखा होता तो शायद सेल्फ वर्क भी नहीं कर पा रहे होते, कई बार ये भी रीजन होता है। नहीं, ये तो यू नीड रीजन टू नहीं है। आस्क। ये रीजन नहीं है। मेरा रीजन बहुत क्लियर है कि मैं वो बात पहुंचाना चाहती हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं है पहुंचाने की। ये रीजन है मेरा कि आई वांट द अदर पर्सन टू नो कि भाई दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, एंड उसका इफेक्ट मेरे पे ये पड़ा है, पर मैं वो हिम्मत ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं वहां तक वो बात पहुंचाऊं, क्योंकि वो बात का बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। आर यू इन टच विद एक दैट सेकंड। पर्सन? हाँ, 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 फैमिली, वेरी क्लोज। मेरा बहुत, मेरे जो इश्यूज या मेरी कोई भी इमोशंस हैं, इट इज मेनली विद माय क्लोजेस्ट पीपल। आई डोंट टेक ऑल दिस टू माय हार्ट कि फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया इसने, नहीं, इट्स विद पीपल हुम आई इसको रियली लव। इसको रिलीज करो, इसको कैरी नहीं करो, ये फिर रिलीज नहीं करा आपने करनी। अगर आप लेटर राइटिंग, ईएफटी हो, पोरो पोरो करो, ये रिलीज ही हो जाएगा, यू विल नॉट फाइंड अ नीड टू कीप इट। ठीक है। अभी नीड आ रही है ना, ये हाँ। ईएफटी में ना ये भी क्लियर कर लो।
देयर इज अ नीड, जो आप नीड कर, देयर इज अ रेजिस्टेंस फॉर लेटिंग गो ऑफ दिस पेन, जो भी है। अभी हाँ आप रख रहे हो, सुनैना ने बोला ना कि आप रख रहे हो, मैंने बोला आपने हम्म कैसे किया हुआ है। इनके पास इस चीज का Exactly आंसर क्या हुआ अभी कॉन्शियस लेवल पर नहीं है तुषार। है? इनके सबकॉन्शियस में काफी कुछ अनरिजॉल्व्ड जो है अभी भी, या तो शी हैज हाँ। नॉट डेवलप्ड द राइट एक्सप्रेशन, might be right words, right tone, right kind of personality who can actually who knows how to convey the things हम्म efficiently and effectively. हम्म। कई बार ये भी होता है कि हम अपने पे इस तरीके से काम कर रहे होते हैं और अपने आप को रिमाइंडर के लिए भी रखा होता है कि आए। नहीं, मैंने ट्राई किया था, सुने ना, मैंने एक बार कोशिश की हाँ थी कि मैं ये बात हाँ बोल दूं कि भाई मुझे ना ये हाँ चीज नहीं ठीक लग रही, पर वो जो हम्म रिएक्शन था ना वो इतना ज्यादा हम्म एडवर्स था कि मैं इतनी घबरा गई, बट देन एट द सेम टाइम आई फेल्ट कि यार आई नीड टू एड्रेस दिस, बट हाउ मुझे समझ नहीं आ रहा था, यही विच कह इज रही हूँ मैं वेरी। अभी। मैंने आपको, हाँ श्रुति, मैंने आपको भी यही बोला। आई एम सॉरी आई हम्म इंटरप्ट, लेकिन मैंने यही हम्म बोला कि कई बार हमारे पास, हम इस चीज को एडमिट नहीं कर पाते हैं कि मेरे पास राइट वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हम्म। पर आपका सामने वाले का रिएक्शन जब आता है हम उससे डर जाते हैं। डर हाँ जाते हैं तो इट मीन्स आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट द थिंग्स इफेक्टिवली। तो यू नीड टू लर्न द वेज टू कम्युनिकेट इट इफेक्टिवली सो दैट एक्चुअली आपके पास वो राइट वर्ड है, राइट बॉडी लैंग्वेज है, राइट टोन है, राइट एक्सप्रेशंस हैं। जब आप ये देखें कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके एक्सप्रेशन सामने वाले के लिए कई बार ऑफेंसिव हो सकते हैं, हम्म। उनके लिए वो एक्सप्रेशन डैमेजिंग हो सकता है, उनके खुद के लिए, ओके। राइट, उनके लिए, और वो उनको ऑफेंसिव लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक मेरे और ख्याल चीज, से। बार बार जो है हम बार बार, क्योंकि ईएफटी में ना बहुत प्रैक्टिस होता है उसमें बार बार, ये इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ईएफटी में रिलीज द नीड टू कीप इट। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ईएफटी ना, यू गेट द आंसर कि मेरे को क्या करना है, बिकॉज ओके। आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हो कि आई एम रिलीजिंग द नीड टू कीप दैट एनर्जी और कंटेंट और इमोशन विद मी, and I'm not letting it go, but I still choose to heal and integrate that part of me, and I choose to love and accept myself deeply and completely. I let go of the need to keep the letter, I let go of the need, let go करो, वो नीड ही खत्म हो जाएगी, मुझे उसको कन्वे ही करना है। मतलब मुझे पता है कि मैंने तभी ये क्वेश्चन देखो पूछा बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो होल्ड ऑन कर रही हूँ मैं, वो कैरी, एंड यू नो, हाँ, कि वो कैरी करके मैं लेके जा रही हूँ। कोई और बात नहीं, मुझे, एक्नॉलेज किया ना, तो इसको हाँ ईएफटी से निकाल दो। जब आप ईएफटी से ये रिलीज कर दोगे ना, नीड टू कीप द लेटर्स, तो हाँ आप उस तक पहुंच भी जाओगे, ठीक है। राइट, यू विल गेट। और अनदर इज एक प्रैक्टिस और कर लेना कि व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग हम्म। for by keeping, writing the letter and saving, and what will be the benefit by talking, अगर convey कर देते हो, और ठीक what है। are the tools that you have to convey to the person, और what is stopping you, आपको क्या stop, क्या आपने, आपको क्या क्या बेनिफिट है रखने के और रिलीज करने के, आपके पास क्या क्या टूल है कन्वे करने के, हम्म। एंड व्हाट इज स्टॉपिंग यू, चार चीजें, आपको क्या रोक रहा है उस तक जाने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉरगिवनेस प्रेयर और ये ईएफटी करके ये बिल्कुल मैं ईएफटी मेरा कर लो, रिलीज ही हो जाए, बिल्कुल ईएफटी ही। हाँ सब कुछ कर लो, लेकिन ईएफटी तो पहले शुरू कर लो कि ठीक है। रिलीज करो, नीड को रिलीज करो, लेटर क्यों ठीक। रखने हैं, ठीक। क्यों एनर्जी हाँ कैरी करनी है, वही तो हम सीख एंड नहीं रखनी। या अनन करते करते आई थिंक इनको ये सब करते करते इनको ये हम्म पता भी लग जाएगा हम्म, दैट आपको अपना वाला जो करना पार्ट है क्या है। आपको वो भी पता लगने लग जाएगा। जब आप ये करेंगे तो हम्म एक्चुअल में आपको अपने वाले पार्ट में जो खामियां हैं वो नजर आने लग जाएंगी। हम्म, और नीड ही दैट खत्म हो माइट, जाएगी। हाँ हाँ हो भी एग्जैक्टली, वही सकता मैं जानना चाह रही थी कि क्या ऐसा होगा कि ये प्रैक्टिस करते करते मे बी वो नीड ही खत्म हो जाए कि नीड ही मुझे कर, वो, आप वो ईएफटी में निकाल दो सारा, क्योंकि उसको वो जो लेके है वो जाओ। पास्ट में है ना, वो अभी तो है नहीं कुछ भी, तो वो मुझे इट इज नॉट सर्विंग और हेल्पिंग मी इन एनी विच वेज, वो ना मैं किसी को सुधारने वाली हूँ ना मेरे लाइफ देखो में कुछ आपने फर्क खुद पड़ने वाला स्टेटमेंट है। दे दी, खुद स्टेटमेंट, जो मैंने क्वेश्चन पूछा खुद दे दिया कि इट इज नॉट सर्विंग एंड हेल्पिंग मी, हाँ नो एंड इट यू इज कीपिंग द नॉट। शिट विद यू, हाँ हाँ। नो पॉइंट। ईएफटी में निकालो, वैसे नहीं, ईएफटी से ही निकल जाएगा ये। ठीक है। सेल्फ डन। सिंपथी भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है एक्चुअली। सेल्फ सिंपथी बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम्म। जैसे ही आप करने लगते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि आई वांटेड टू हैव दीज इमोशंस, आई वांटेड सामने वाला टू फील इट फॉर मी, हम्म बट ट्रू। ट्रू। राइट, तो सामने वाला फील नहीं कर पाया और मैं भी अपने आप को वो इमोशन नहीं दे पाई, तो मैं बेचारी मी बन गई फिर। जब वो हम्म हाँ। बेचारे आप बन गए तो वो बेचारा मी इनर चाइल्ड जो है वो पकड़े हुए है एक्चुअली। ये आप एडल्ट सेल्फ नहीं पकड़े। एडल्ट सेल्फ तो कह रहा है कि चार्ज मैं लेना चाह रही हूँ, लेकिन हम्म आपका इनर चाइल्ड वो चार्ज छोड़ना नहीं चाह रहा है, बिकॉज वो इनर चाइल्ड को कोई इमोशन चाहिए। जब आप वो इनर चाइल्ड को वो इमोशन दे दोगे, लव एंड एक्सेप्टेंस दे दोगे, और लव एंड हम्म एक्सेप्टेंस से उसको वो, मतलब वो इमोशंस, उसको हम्म इमोशंस में जब आप पूछोगे तो उसको क्या इमोशन चाहिए,
उसको लविंग इमोशन चाहिए, उसको हगिंग चाहिए, उसको किसिंग चाहिए, उसको अप्रिसिएशन के वर्ड्स चाहिए, उसको क्या चाहिए? वो हर इंसान की नीड अपनी अलग अलग होती है। तो उस समय पे आपका वाला अंडरस्टैंड करना चाहता था इनर चाइल्ड, आपका टेक केयर करना चाहता था वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद सम अदर पर्सन, तो बी लिटिल नाइस टू माई ओन सेल्फ, ऐसा भी होता है कई बार। तो वो जब आप ड्रिल करेंगे तो आपको एक्चुअल में उसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली योर इनर चाइल्ड वाज वांटिंग, बिकॉज दिस इज नॉट यू वांटिंग टुडे, योर एडल्ट सेल्फ इज सो एडल्ट टुडे, बट आपका इनर चाइल्ड जो है वो पकड़े हुए है आपको, वो कह रहा है कि नहीं, जब तक मुझे तुम ये इमोशन, जैसे एक वो होता है ना, ये चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड को जब तक आप वो इमोशन नहीं दोगे वो तो वो उस जोन से बाहर नहीं निकलता है। या तो आपको उसको, एक जिद्दी चाइल्ड कैसा होता है, जब इनर चाइल्ड, एक जिद्दी चाइल्ड या कोई भी चाइल्ड जिद्दी कब बनता है? पहले बच्चा जिद्दी नहीं होता है, पहले बच्चा सिर्फ जिद करता है क्योंकि उसको वो चीज चाहिए होती है। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरी जिद से ये मुझे अटेंशन दे रहे हैं, तो वो जिद बार बार क्रिएट करने लग जाता है। ये हर बच्चे के साथ नहीं होता है, ये हर बच्चे की अपनी अलग अलग मतलब निशानी होती है। तो आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो उसके पास उस चीज का आंसर है। और वो जब आप पूछेंगे, ड्वेल करेंगे, तो आपका इनर चाइल्ड एक्चुअल में आपको बताएगा। एंड देन आई थिंक लेटर ऑन देयर आर एक्सरसाइजेस जो इनर चाइल्ड को हील करने के लिए ही बनी है। तो वो एज रिग्रेशन टेक्निक्स होती हैं और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप वो आंख बंद करके, और एक्चुअल में आपने मेडिटेट किया या किसी थेरेपिस्ट की मदद से उस इवेंट, अगर वो इवेंट आपको रोक रहा है, आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं आपको रोके हुए भी होगा आगे स्टेप लेने के लिए किसी चीज में। यू माइट नॉट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, और जैसे ही वो चार्ज आप उससे ले लेंगे, लेकिन आपको उसको वो इमोशन देने पड़ेंगे बदले में, राइट। दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में फील करने के लिए। एक और चीज, क्योंकि इनर चाइल्ड से आप झूठ नहीं बोल सकते। इनर चाइल्ड एक ऐसा चाइल्ड है, इनर सेल्फ एक ऐसा सेल्फ, इंटेलिजेंट सेल्फ है जिसके पास, आपके पास 50 साल की एज में भी वो आपको बांध के रखने की हिम्मत रखता है। आप समझ रहे हो कि वो Sunana, इतना पावरफुल है। we also have या Masuda who would want to share something. But या before we या take up Masuda, श्रुति, एक और चीज थी जो आप बार बार कह रहे हो, सुनैना भी कह रही है, मैं भी कह रही हूँ कि आप नीड है कुछ रखी हुई है आपने, मैंने कहा ईएफटी से रिलीज कर दो। दूसरा, इसी लेटर में कम डाउन टू लास्ट पैराग्राफ, उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ना जरा। Last paragraph की first line. I release a need for you to change, understand, apologize or give me a closure. देखो, ये आपकी स्टेटमेंट है, आपने कहा कि मुझे उसको मुझे अंडरस्टैंड कराना है, आपका आ रहा है ना ये, हाँ तभी आपने होल्ड किया है, रिलीज कर दो हाँ ये लेटर। डू टू प्रैक्टिसेस, राइट द लेटर एंड ठीक है इस लेटर ओके में वो सब है जो आपने बोला। ठीक रिलीज, है वो नीड ही रिलीज करोगे, मेरे को तेरे को अंडरस्टैंड ही कराना है, मुझे तेरे तक बात पहुंचानी है। ठीक है जस्ट ठीक लेट इट गो। मसूदा, यू वांटेड टू शेयर समथिंग, प्लीज गो अहेड। हाँ, मुझको शेयर नहीं करना था, मुझको एक क्लैरिटी चाहिए था। प्लीज गो अहेड। जो सुनैना अभी आप बता रहे थे, एंड इट वाज, अब मैं कॉन्टेक्स्ट थोड़ा भूल गई, बट जो बात मैं कहना चाह रही थी वो ये थी कि इट वाज एन इवेंट जो कि हर बार मुझे ये फील जो कराती है दैट द बाउंड्रीज आर नॉट रिस्पेक्टेड, इज लाइक जैसा आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं ना, तो वो आपको एक, दे गिव यू समथिंग इन कॉम्प्लीमेंट्री टू होल्ड योर टिकट्स एंड पासपोर्ट एंड एवरीथिंग। इट वाज अ वेरी छोटी सी चीज, बट ऐसा छोटा सा ऐसा ट्रैवलिंग चीज जो है, फैंसी चीजें, दे जस्ट अट्रैक्ट एंड इट फील्स गुड, जो भी है। इट वाज वे लॉन्ग बैक, तो somebody, an adult, and that person had to travel, तो उन्होंने बकायदा मुझसे छीन के लिया वो वापस। I mean, while I thought that I was just lending it, but it was not asked. It was asked as if I'm supposed to just lend for a visit or something, and I happily gave it. But then जब मैं lend करने को दे रही तो it was snatched away from my hand कि it's mine करके, and something. I mean, that is something at the back of everything. लोग ऐसे ही करते हैं ना, आपकी चीज, आपका हक आपको ना देके और अपना हक समझकर आपसे छीनते हैं। What is the point that बहुत you want to सारी, clarify here by narrating the हाँ event? मतलब हाँ, फिर ये चीज जो है somehow वो स्टिक कर जाती है, of boundaries not being respected, and especially from trusted people. And then there's another event in which, like, it was my dresses,
and there was somebody in the family, उनके financial conditions were not that good. तो बाद में बहुत later in life I realized कि वो मेरे size के इसीलिए नहीं होते थे because that had to be passed on to her. Right. तो ये चीज मुझे बहुत ही बुरा स्ट्राइक करी एंड खैर आई एम ओवर इट नाउ बट समहाउ पता नहीं क्यों मुझको ये अभी लेटर लिखते हुए पता नहीं क्यों ये दो इवेंट्स याद आए एंड अगेन द लेटर आई वाज राइटिंग टू माय सेल्फ वाज ऑन दिस ग्राउंड of boundaries not being respected, just like you were saying के मुझसे पूछा नहीं गया कि what choices I would like to make in life ये वो so these were very early incidents जो मुझे frequently याद आ जाते हैं. हाँ, तो इसको आप इसको लिखो कि आप ये क्या अभी भी सेम है कि आप बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाते हो? हाँ, हाँ, बाउंड्रीज मैं तो ड्रॉ करती हूँ. सामने वाला जैसे वो गाय होती है ना, घुस जाती है किसी के भी खेत में, तो वो बेचारा वो तो लगाता है तार भी लगाता है, बट स्टिल वो बैल भैंस ऐसे ही घुस जाती है ना. हाँ, तो आप इसको अपना ये क्रिएट कर सकते हो थ्रू EFT एंड राइटिंग सेल्फ, और इसको लेके आओ. पहले तो आप ये ना ड्वेल करो कि आप व्हाई आर यू नॉट सक्सीडिंग इन क्रिएटिंग द बाउंड्रीज. कहाँ पे ब्रेक होती हैं, कहाँ पे हाँ, ब्रेक होती हैं, मतलब कितने हद तक जाके कहाँ पे आप ब्रेक कर देते हो बाउंड्रीज, या आप कितना और आपके एंड से क्या कमी रह जाती है. somebody is writing, this is Shruti. So Sunana, yes, I do think it's a bit of self centered. Okay, so Sunana, we'll read it. तो आप इसको ये देखो कि बाउंड्रीज आप ड्रॉ करने में फेल क्यों हो रहे हो, कहाँ पे फेल हो रहे हो, और वो क्या क्लोज रिलेशनशिप में या स्ट्रेंजर्स में भी है, क्लोज्ड में ही होगा वो, right? One this. Another is you can also practice EFT. Okay, even though I know I feel helpless in creating boundaries, and I feel it in my chest or shoulder or wherever it is. नहीं, वो बाउंड्रीज क्रिएट करने में इशू नहीं है, बट सामने वाला जो है हैज दिस पावर ऑफ कुछ लोगों की आदत होती है कि दरवाजा बंद भी है मगर हाँ, वो तो मैंने बैंग तभी हेल्पलेसनेस बोला ना, करके क्योंकि आप खोल क्रिएट के कर घुस रहे हो. जाते हैं. I have given you the word helplessness हाँ, because you're creating but still fail हो जाते हो, स्टिल फेल हो रहे हो, वो फिर घुस जाता है कहीं ना कहीं अपने सींग लेके, तो आप हेल्पलेसनेस फील कर रहे हो. तो हाँ, उसका EFT करो. इवन दो आई फील हेल्पलेसनेस बिकॉज आई एम नॉट एबल टू clearly draw my boundaries and I feel it in my chest or legs or shoulder, but I still choose to heal it. उसको heal करो, वो जो बाउंड्री ड्रॉ नहीं हो रही उसको heal करो, उसको एनर्जी दो, so that you can clearly boldly draw the boundaries and nobody can cross the boundary. And I choose to love and accept myself deeply and completely. And then writing the letter, हो सकता है राइटिंग उसको भी लिख दो जो बाउंड्रीज तोड़ रहा है, और अपने आप को भी लिखो. राइट द लेटर टू सेल्फ, राइट. right? And okay, Shruti says, Sunana, yes, I do think it's a bit of self-sympathy too, because if there's a disagreement about something and I'm not heard, then I read that email and then I feel how bad I was feeling then even now. And it is some kind of self-sympathy too. So there's sudden feeling of concern myself, and then, okay, right. And another, all right. Okay. हाँ, जो right, तुषार अभी आप ऐड कर रहे थे ना मसूदा के लिए, मसूदा को या ये भी आप चेक करने के लिए थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं कि जब जब मसूदा ये एक्सपेक्ट करती हैं कि पीपल डोंट, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनका जर्नलाइज बिलीव भी बन गया है. तो कई बार क्या होता है कि जर्नलाइज बिलीव जब हम बना लेते हैं तो उस मोमेंट पर अपने आप को भी क्रॉस चेक करना, क्योंकि कई बार सामने वाला मिरर कर रहा होता है हमें, या फिर हम किसी के साथ बाउंड्रीज कई बार मेंटेन नहीं कर रहे होते और कोई और पर्सन हमारे साथ बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करता, तो यूनिवर्स हमें मिरर रिफ्लेक्शन करवाने लग जाता है. सो यू नीड टू चेक योर, क्योंकि ये हर चीज हमारे खुद से रिलेटेड है, हर चीज, हर मतलब ये मुझे इतनी लेट समझ में आई है और इतनी मजेदार और इतनी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बात है ये कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है. अगर हेल्पलेसनेस हम फील करें तो इट मीन्स वी आर नॉट इफेक्टिव इनफ. हमें वो वे नहीं आता है उस चीज को कम्युनिकेट करने का, क्योंकि रास्ते तो बहुत है लेकिन हमने उस रास्ते को कभी ढूंढा नहीं, या कोई रास्ता हमारे पास आया नहीं, हम ब्लेम में ही रहे हर वक्त, ऐसा भी होता है. और बाउंड्रीज का जब आपके इसमें बार बार कंसर्न आ रहा है, अगर ये बार बार आ रहा है, मैं उसको हाईलाइट करूंगी यहाँ पे कि अगर बार बार आ रहा है बाउंड्रीज का, तो आप ये देखिए कि आप जब किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उस समय आप कितनी बाउंड्रीज का ध्यान रखते हैं. तो अगर ध्यान, आपको ये खुद ही फीडबैक मिल जाएगा कि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मिरर रिफ्लेक्शन में तो नहीं डाल रहा है, और इट कैन बी अ फीडबैक फॉर योर ओन सेल्फ. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सामने वाला अपने आप ही बाउंड्री क्रिएट आपसे अपने आप ही क्रिएट करना शुरू हो जाएगा और आप भी कर पाएंगे उस वक्त. या थैंक यू. Great, thank you so much, thank you. So थैंक that's यू. also a point to get into self reflection कि आप mirror check करो.
और देखो कि कहाँ पे आपने ब्रेक किए बाउंड्रीज वाइल यू वर ट्रीटिंग एंड हैविंग एन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, आप कहाँ कहाँ पे रॉन्ग हुए। क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इट कम्स बैक टू यू, कहीं ना कहीं से वो कम बैक होता है। तो चेक वेयर यू हैव क्रॉस द बाउंड्री वाइल डीलिंग विद अदर पीपल, कहाँ पे आपने उनको पेन किया था, कहाँ कहाँ पे किया था। उसके लिए आप फॉरगिवनेस कर लो, यानी कि होपोनोपोनो कर लो, वो मोमेंट्स के लिए, वो पर्सन के लिए आप उसके लिए कर लो। वो जो अगर आपको बार बार आ रहा है, मिरर रिफ्लेक्ट करके हम्म। एक्सरसाइज करो। जब सामने आपको सामने आएगा, आपको सबको सब पता होता है, जब आप हम बैठते हैं ना साइलेंट, सब चीज जिस मैंने कहा जो चीज हील होनी है वो ही सामने आएगी। बहुत सारे इवेंट होंगे नहीं आएंगे, जिसको हील होना है वो आएगा, और उसको ही होना था हील। वो सरफेस पे आएगी, वो चीज वो आएगी, तो वो पकड़ के उसको होपोनो पोनो कर दो, राइट। एक्नॉलेज करो उसको, वो फॉरगिव करो उसको, थैंक यू करो उसको, आई लव यू करो, एंड जस्ट और हम्म। या आई एम सो सॉरी तुषार, बोलो बोलो प्लीज। और इसको मतलब कहते और बी कॉशियस, और ये कॉन्शियस प्रैक्टिस करो एंड मेक श्योर ये दैट यू डोंट क्रॉस द बाउंड्री। आप कर रहे हो तो वापस में वो आएगा, तो आप चेक भी करते हो। अब तो पिछला तो जो हो गया, लेकिन उसको सोच सकते हो और उसके लिए फॉरगिवनेस कर सकते हो। आगे के लिए यू बी कॉन्शियस दैट यू डोंट डू इट, राइट। या सुनैना ऐड अप बिफोर वी या वाइंड इट अप। बस हाँ, बस मैं ये दो चीजें करूंगी ऐड कि एक तो वो वाले इश्यूज सामने आते हैं जो बड़े मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं होते हैं। कई बार ये होता है कि हम उतने ही तैयार होते हैं, जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि कुदरत हमें उतनी पेशेंस देती है जितनी हमें जरूरत है, या हमें लग रहा होता है कि हमें इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे तो मैं ओवरकम करूंगी एंड आई बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। तो आप जितने तैयार होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके अंदर से इशू, मतलब क्योंकि आपके अंतर मन को तो सब पता है, अंतर मन से क्या छुपा है। आपकी सोल आपको हर वक्त इंडिकेट करती रहती है कि किन चीजों पे काम हुआ है नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि हम इग्नोर करते हैं या हमें पता नहीं है कि उसको तवज्जो कैसी देनी है। तो वो वाले इश्यूज पहले सरफेस पे आते हैं जिसके लिए आप तैयार हो चुके होते हैं। तो जितने जितने आप गहरे तैयार होते चले जाएंगे, और ऑथेंटिकली, ऑथेंटिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको किसी को शो थोड़ी ना करना है। आप ग्रो कर रहे हैं अपने अपने अंदर से। तो आपके अंतर मन को पता है कि आपने अपने पे कितना काम किया है, और वो उस लेवल के सिचुएशन को ही आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप एक्चुअल में पूरे तरह से तैयार हो जाते हैं तो डीप वुंड्स भी ऊपर आने लग जाते हैं। तो आपको पता लगता है कि यार एकदम से ये क्या हो गया मेरे सामने। तो उससे घबराना नहीं है कि एकदम से कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एकदम से मेरी हीलिंग जर्नी शुरू हुई है तो मेरे सामने ये भी इशू आने लग गए, वो भी इशू आने लग गए। दैट्स ओके। क्योंकि वो इश्यूज आपने एक्चुअल में ढेर की तरह एक बोरे में संभाल के बंद करके रखे हुए थे, सैक करके। तो वो जैसे जैसे आप तैयार होंगे रिलीज होने के लिए, उसी उसी लेवल की ही चीजें आपके सामने आएंगी। और यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू बी करेजियस। और आपने अपने आप, अपने इनर चाइल्ड को और इनर सेल्फ को बार बार ये बोलना है दैट नाउ यू आर रेडी टू टेक चार्ज। और आपका, सपोज जैसे मेरा था ना कि इनर चाइल्ड में मैं अपना ध्यान नहीं रखती थी, हर चीज में मैं अपने आप को स्टेक पे रख देती थी कि कोई बात नहीं यार, ये ऐसा, कोई बात नहीं वैसा। तो मतलब मेरा इनर चाइल्ड मुझे बोलता था कि यार यू आर टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। तो ये मेरे सेशंस के अंदर निकला कि मेरा इनर चाइल्ड ही मेरे ऊपर हंस रहा है, और वो मुझे कह रहा है कि तुम कह तो देती हो लेकिन तुम करती नहीं हो। देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, देयर कन्वीनियंस, देयर कंफर्ट, देयर दिस थिंग, देयर दैट थिंग। मतलब इन केस ऑफ माय सिबलिंग्स एंड मतलब पेरेंट्स इफ आई टॉक अबाउट, और माय चाइल्ड इफ आई टॉक अबाउट, कि अपनी नीड्स को हम बिल्कुल पीछे की तरफ रख देते हैं एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। राइट। तो मेरा इनर चाइल्ड मुझे बोलता है कि यार तुम कह रही हो कि अपने पे काम कर रही हो, लेकिन तुम अपने पे काम नहीं कर रही हो उतना, कि तुम सेल्फ लव तो नहीं कर रही हो, तुम अभी भी अंदर से दुखी हो। तो मेरा इनर सेल्फ तो मुझे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ना, वो मैं उसको नहीं सुन रही हूँ तो वो मेरे ऊपर है। तो वो दोबारा एक वूंड क्रिएट कर देगा, बिकॉज एक इनर चाइल्ड 10 इनर चाइल्ड को पैदा कर सकता है, और वो 10 इनर चिल्ड्रन जो है आपके आगे 50 इनर चिल्ड्रन को पैदा कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वाला कब इवेंट अकर हुआ था। और मतलब ये इवेंट अकरेंस मोमेंट्स होते हैं, कि उसको इवेंट्स जब अकर होने लग जाते हैं तो एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वाला रिग्रेस करूं और कौन सा वाला ना करूं। तो इकट्ठे बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। सो बी करेजियस इनफ, क्योंकि इनर चाइल्ड आपको वो शो अप कर रहा है जो आप कभी देखना भी नहीं चाह रहे थे, या आपको देखना नहीं आता था, या देख नहीं पा रहे थे, कुछ भी हो सकता है ये। दिस इज यू। बिकॉज हर किसी का सेल्फ अलग है, अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। और जो जो सेल्फ सिंपथी होती है ना, जो अभी श्रुति के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, कि ये बहुत बड़ी चीज होती है कि सेल्फ सिंपथी हम सीख कर रहे होते हैं। यार मेरे को पता ही नहीं था कि मैं सेल्फ सिंपथी सीख कर रही थी, आई वॉजेंट अवेयर ऑफ बिफोर दैट। जब मैं हीलिंग जर्नी पे जाने लगी तो
मेरे अंदर करेज आने लगा और मुझे लगा हाँ यार कि आई वाज लुकिंग फॉर दैट सेल्फ सिंपैथी। और मैं अपने आप को भी एम्पैथाइज नहीं कर रही थी, सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे आके करेगा, जो कभी हुआ ही नहीं। तो मेरे को अल्टीमेटली खुद ही करना पड़ा। सो आई थिंक दिस इज ऑल। या Great. थैंक यू। Thank you so much, Sunaina. And I मुझे think सेल्फ सिंपैथी फीलिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? hmm, वो सेल्फ सिंपैथी नहीं होती है, वो सेल्फ लव होता है एक्चुअली। मतलब वो आप यू आर नॉट एबल टू क्रिएट, यू आर नॉट एबल टू गिव दोज इमोशंस टू योर ओन सेल्फ, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। सेल्फ सिंपैथी कहाँ से आती है? बिकॉज सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव नहीं है तभी तो वो सिंपैथी जैसी फीलिंग आ रही है, बेचारे वाली फीलिंग आ रही है ना। वो बेचारे वाली आपको नहीं आ रही है, अडल्ट सेल्फ को नहीं आ रही है, वो बेचारी वाली फीलिंग इनर चाइल्ड को आ रही है, जो 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, जो वूम में भी हो सकता है कि मेरी माँ मुझे पता नहीं प्यार करेगी भी कि नहीं, मैं गर्ल चाइल्ड हूँ, पता नहीं मुझे वो प्यार मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो सेल्फ सिंपैथी का पैटर्न हो सकता है कि वूम से ही बन गया हो आपकी, आपको क्या पता। हो and सकता है कि आपकी विजिबिलिटी भी नहीं आ रहा है, बट hmm, हो सकता है कि ये आपके मदर, ये आपके पास ऑन चीजें भी हो सकती हैं, और ये वूम में भी डेवलप hmm. शुरू हो सकती हैं, जिसके एक बारे और में आपको लग रहा होगा। या एक जी। और चीज थी, जैसे उन्होंने कहा कि सेल्फ सिंपैथी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो उसको मसूदा आप चेक कर सकते हो कि ये जो सेल्फ सिंपैथी आ रही है ये आपको डिसएम्पावर कर रही है, एम्पावर कर रही है। इज इट बूस्टिंग यू टू टेक चार्ज एंड टेक टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ? आपको एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर रही है, या आपको लो इमोशंस में लेके जा रही है? इफ इट इज टेकिंग यू टू लोअर फ्रीक्वेंसीज, तो ये सेल्फ सिंपैथी इज नॉट हेल्पिंग इन सर्विंग यू। But if it is pushing you to move forward, to take action, to grow, to empower yourself, तो ये आपका पावर पॉइंट है, देन इट्स नॉट योर पेन पॉइंट। तो इसको आपने आपने देखना है, एनालाइज करना है, एग्जामिन करो कि कहाँ लेके जा रहा है। I don't think, sorry, but Sunaina, I do not think that self sympathy is any form of self love. Self love में तो हम अपने आप को सिर्फ empower करते हैं. Self sympathy, मसूदा, believe me, I've gone through it. अब now I've realized, just now अभी सुनैना ने जब ये बात बोली तब मुझे realize हुआ that it was self sympathy, and it is the worst thing that you go through, you know, because you feel अरे यार हमारे हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर तो वो तो सारे एपिसोड्स कनेक्ट ही होते जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और वो तुमको सिर्फ पुल डाउन करते हैं, वो तुम्हें कहीं से भी कोई बूस्ट नहीं करते। सेल्फ लव, आई थिंक अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और अगर हम वो स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड विद मी, अगर वो ईमेल्स या लेटर्स में लिखती अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि आई विल नॉट टेक दिस इन फ्यूचर, देन इट वुड हैव बीन सेल्फ लव व्हिच वाज हेल्पिंग मी, इसको थोड़ा बट सा इसको what थोड़ा I did सा was self sympathy. या Definitely, Sunena, इसको thank थोड़ा सा you. यहाँ पे करेक्ट और एड ऑन भी कर सकते हैं श्रुति, कि सेल्फ हाँ, सिंपैथी को यू कैन ट्रांसफॉर्म इट टू सेल्फ लव। yeah, मैंने yes, अभी बात किया yes, ना वसुधा को, हाँ, कि वसुधा चेक करो ये डिसएम्पावर कर रहा है आपको true. या एम्पावर कर रहा है। इफ इट इज जस्ट डिसएम्पावरिंग यू, सेल्फ सिंपैथी है, आप Hmm, लोअर फ्रीक्वेंसीज में सिंक कर जाओगे, hmm, डिप्रेशन या और किसी मोड में चले जाओगे। hmm. अगर आपको समझ आ गई एंड यू टेक चार्ज, तो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेल्फ लव, तो फिर आप ग्रो ही करोगे। लेकिन सेल्फ सिंपैथी में पढ़ के नहीं रहना, ये श्रुति का सर्व नहीं कर रहा है, ये बैठी हुई है कुछ बिल्कुल भी नहीं। आज सुनैना ने मुझे जब ये बोला तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, एंड नाउ एज यू सेड तुषार, वो सेल्फ सिंपैथी को सेल्फ लव में कन्वर्ट करना इज आल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक आई विल तो लेटर डू लिख इट। के बस ऐसे ग्रेव में चले जाना, इसका डिसीजन है, या फिर उससे निकल जाना है। तो हाँ, दैट शी हैज टू डिसाइड कि नाउ अब, और क्योंकि ये अब आ गई इस जर्नी में, तो इसको पता है क्या करना है, शी विल गेट द आंसर हरसेल्फ ओनली। हम लोग का कोई काम नहीं होता, हम लोग का, हमने भी यही सीखा है, हम लोग कहीं कुछ हेल्प नहीं कर रहे होते, हम एक रिफ्लेक्टिव जोन में ले जाते हैं, बस ये करते हैं, एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे आपको खुद ही रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है, यानी आपके पास आंसर्स खुद ही अंदर ही पड़े वो आने शुरू हो जाते हैं। बाकी हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं वो टेबल पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये सबसे ऐसे ही सीखे, ऐसे ही निकाला है। So that's what we have been doing and we have been delivering. And it's already 11:55. Thank you so much everyone. आज की assignment I'll be sharing, ये जो letter है, this and the one exercise which we have done earlier, वो, और मैंने किसको बोला था, श्रुति को, श्रुति रिलीज द नीड EFT के थ्रू रिलीज कर दो, और लेटर के थ्रू नीड रिलीज करो, दोनों स्पेसिफिक है, बिल्कुल उसी के लिए, रिलक्टेंस के लिए। एंड मसूदा, जो आपका हेल्पलेसनेस आ रहा है ऑफ नॉट क्रिएटिंग द बाउंड्रीज, यू डू इट, आप पहले ये देखो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, और फॉरगिवनेस उसके लिए क्रिएट कर सकते हो। और ये तीनों चीजें हमने तीनों बता दी, विच एवर गोज वेल विद यू, just practice is the point, is you need to practice, be consistent, result. And Masuda, thank you so much for sharing the last the yesterday only, that you know, you could actually overcome that pain point from 10 to 1 by practicing EFT, and I'm so glad that it helped you.
and other people, please do keep sharing. जिसको जो जो रिफ्लेक्शन आ रही है या जो जो हेल्प कर रहा है वो ग्रुप में, प्लीज फील फ्री टू शेयर. इट ऑल्सो encourages other people to be on this journey, to stay consistent कि हाँ ये काम करती हैं, because this has worked for many people, worked for us, and working for you as well. So I really love to have your insights, reflections, stories to be shared in the group. Thank you so much. Have a great day, everyone, and thank you for coming and taking charge of your life and being on this journey of healing. Thank you. Thank you, Sunaina, so much for sharing and bringing your words of wisdom. I'm so glad. Thank you, everyone. And I just want to say, I just want to give kudos to the people who are able to share their inner stuff, which they were not able to do that actually with everyone. So I'm so glad and happy that कुछ भी हमने सीखा है तो वो काम आ रहा है अभी, मतलब for Right. people. That I'm very very glad for. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. Great day. Enjoy and be on this journey of self-reflection, growth, and healing. Thank you. Take good care of yourself. Bye bye, everyone. Thank you.